میں ہوں دن امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت سی خوفناک باتیں آنے والی ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کب جادوگروں نے دنیا پر حملہ کیا۔ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں 1859 میں، جب لوگوں نے صبح ہوتے ہی سیر کرنا شروع کر دی، لیکن انہیں کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں بھی دیکھی۔ وہ ڈر گئے۔ انہوں نے جب وقت دیکھا تو رات کے ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے۔ مائیکل ان میں سے ایک تھا اور وہ فوراً ڈر کے گھر کی طرف آیا، لیکن اس کو اپنے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں وہ تمام ہارر موویز چل گئیں جو اس نے بچپن میں دیکھی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک کمرے کی طرف سے کافی آوازیں سنی۔ وہ جیسے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ٹیلی گراف مشین دھڑا دھڑ کوڈز شائع کر رہی تھی، پبلش کر رہی تھی۔ یہ عجیب و غریب قسم کے کوڈز تھے جس کی مائیکل کو کوئی سمجھ نہ آئی۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہی واقعہ کینیڈا میں 1989 میں ہوا، جس سے 60 لاکھ 6 ملین پیپل متاثر ہوئے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کینیڈا، جہاں پر رات کو دن ہو گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور گھروں سے باہر نکلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی چلی گئی، ٹوٹل پاور شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ لوگوں نے آسمان پہ مختلف قسم کی رنگ برنگی روشنیاں بھی دیکھی۔ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ پھر جادوگروں نے دنیا پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ حملہ جادوگروں کا نہیں تھا، یہ حملہ تھا سورج کا۔ جی ہاں، ہمارے سورج میں ہر وقت ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور ان دھماکوں کی وجہ سے مختلف چیزیں ہماری زمین کی طرف ٹریول کرتی ہیں، جن میں ریڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ جب بھی سورج پر ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو ایک سولر فلیئر بنتا ہے جس سے ایکس ریز نکلتی ہیں، اور یہ ایکس ریز منٹوں میں زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ زمین کے میگنیٹوسفیئر، جو زمین کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کی وجہ سے ہم ان ایکس ریز سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ میگنیٹوسفیئر نہ ہو تو یہ ایکس ریز ہمیں ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ ان میں یو وی ویوز بھی ہوتی ہیں، ویزیبل رینج میں بھی ویوز ہوتی ہیں، انفرا ریڈ بھی ہوتی ہیں، اور اگر سولر فلیئرز ہوں تو وہ ایکس ریز بھی بن جاتی ہیں۔ سولر فلیئرز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: بی ٹائپ، سی ٹائپ، ایم ٹائپ اور ایکس ٹائپ۔ سی ٹائپ سولر فلیئرز بی ٹائپ سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایم ٹائپ سولر فلیئرز سی ٹائپ سولر فلیئر سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ایکس ٹائپ سولر فلیئرز ایم ٹائپ سولر فلیئر سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ ہے ایکس ٹائپ سولر فلیئرز، کیونکہ اس کی وجہ سے زمین پر بہت تباہی آ سکتی ہے۔ سی ٹائپ اور بی ٹائپ سولر فلیئرز تو عموماً سورج پر بنتے رہتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ امپیکٹ زمین پر نہیں ہوتا۔ ایم ٹائپ سولر فلیئرز کا امپیکٹ زمین پر ہوتا ہے، پر وہ بہت زیادہ ہارش امپیکٹ نہیں ہوتا۔ ایکس ٹائپ سولر فلیئرز ہمیشہ زمین پر مصیبت لے کے آتے ہیں، اور فیوچر میں یہ اور بھی زیادہ مصیبت لے کر آئیں گے۔ 2003 میں ہم نے ایک بہت بڑا سولر فلیئر ایکسپیرینس کیا جسے ہمارے انسٹرومنٹ پراپر طریقے سے پڑھ نہ سکے۔ اس کی ویلیو X28 تھی، اور اس کی بھی وجہ یہ کہ ہمارے انسٹرومنٹ اوور لوڈ ہو چکے تھے۔ یہ اس سے بھی بڑا ایک سولر فلیئر ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو مختلف سولر فلیئرز دکھائے ہیں اور ان کی شدت، ان کی انٹینسٹی بھی دکھائی ہے۔ کئی سولر فلیئرز زمین سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور زمین ان کے سامنے چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان سولر فلیئر سے 2 قسم کی چیزوں کا اخراج ہوتا ہے، 2 قسم کی چیزیں ان سے نکلتی ہیں۔ ایک تو ایکس ریز جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسری جو بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اسے ہم کرونل میس ایجیکشن کہتے ہیں، جسے ہم CME بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک اٹامک بام ہوتا ہے، ہائیلی میگنیٹک انرجی ویوز ہوتی ہیں جس میں بلینز آف چارج پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایکس ریز کی طرح بہت جلدی زمین پر نہیں پہنچتی، ان کو کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں زمین پر آنے کے لیے۔ لیکن جب یہ زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین پر بہت زیادہ تباہی آ سکتی ہے۔ اسے ہم جیو میگنیٹک سٹارم کہتے ہیں، اور اس میں ٹریلینز آف واٹ ہمارے گریڈ سٹیشنز میں انجیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمین مکمل طور پر چارج ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا الیکٹرک سسٹم پورا کا پورا
तबाह हो जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम भी तबाह होता है और उसके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम भी पूरे तरीके से मुतासिर होता है। 10 साल लग सकते हैं हमें उसे दोबारा सर्विस में लाने के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक है अब जबकि हमारा सारा इन्हिसार इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर है। हम ये जानते हैं कि हमारी जमीन सूरज से बहुत ज्यादा छोटी है। 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा जमीनें सूरज के अंदर आ सकती हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से सूरज ज्यादा गर्म होते हैं, नीले या पीले, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीले सूरज बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आप मेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा सूरज 6000 से 4500 सेंटीग्रेड के बीच में लाई करता है, क्योंकि उसका कलर हमें मालूम है येलो नजर आता है जमीन से। तो अगर आप अपने सूरज की तरफ देखें तो उसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो 5505 सेंटीग्रेड है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे सूरज की एक बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज पर मैग्नेटिक लूप्स बनती हैं जो कि एक्टिव स्पॉट्स पर बनती हैं। 11 साल में एक मरतबा सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से सूरज पर सोलर लूप्स बनती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का पाथ ये है, लेकिन जैसे ही सूरज रोटेट करता है वो अपने इक्वेटर पर, अगर मैं सेंटर लाइन पर देखूं तो बहुत तेजी से मूव करता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ और साउथ पोल का। तो इस लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। सूरज जब रोटेशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाती है और आप देखें वो एलोंगेट होना शुरू हो जाती है और कुछ अरसे के बाद, कुछ रेवोल्यूशंस और रोटेशंस के बाद आपको छोटे छोटे यू नजर आने शुरू हो जाएंगे जो कि मैग्नेटिक लूप्स हैं और ये इस वजह से पैदा होते हैं कि सूरज में मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आना शुरू हो जाती है। आपको ब्लैक स्पॉट सूरज पर नजर आते हैं। ये हाईली मैग्नेटिक एरियाज होते हैं जिनका टेम्परेचर कम होता है और इनसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं जिसे हम सन स्पॉट पेयर भी कहते हैं। लेकिन एक्सप्लोजन इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होते, बल्कि जब दो लूप्स आपस में टकराती हैं तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सन फ्लेयर्स बनते हैं, जिससे एक्सरेज जनरेट होती हैं और जिससे CME भी जनरेट होती है। ये एक मैग्नेटिक बॉम्ब होता है और इसकी वजह सूरज पर दो लूप्स का आपस में इंटरेक्शन होता है जो कि मैग्नेटिक लूप्स हैं। हमारे सूरज की लाइफ 4 बिलियन ईयर्स है और ये 4 बिलियन ईयर्स तक और जिंदा रहेगा, ये हमारी एस्टिमेशन है। तो जब दो लूप्स आपस में टकराती हैं तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि जमीन की तरफ आती हैं। इन वेव्स में दो किस्म की चीजें होती हैं, एक एक्सरेज होती हैं और दूसरी बहुत ज्यादा बड़े एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। CME एक्सरे से बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए जब ये इकट्ठी जनरेट होती हैं तो जमीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एक्सरेज नॉर्मल छोटे छोटे सनफ्लेयर्स में भी जनरेट होती हैं और हमेशा हमारी जमीन की तरफ आती हैं, लेकिन हमारी जमीन के मैग्नेटोस्फीयर उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब CME जनरेट होती हैं और उसके साथ एक्सरेज आती हैं तो वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उससे हमारा DNA भी अफेक्ट हो सकता है। साथ साथ हमारी एटमॉस्फेयर हमें CME से तो बचाती हैं और सन स्टॉर्म से भी बचाती हैं, लेकिन जो सैटेलाइट स्पेस में हैं उनके लिए बहुत खतरा होता है। वो जल सकती हैं, वो बॉयल अप हो सकती हैं और वहां पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल तबाह हो सकता है, ट्रांसफार्मर्स जल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल जल सकते हैं और उसकी वजह यह है कि ट्रिलियंस ऑफ वॉट हमारी जमीन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और ग्रिड स्टेशन भी खत्म हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके साथ इतनी बड़ी तबाही होगी कि शायद 10 साल और उससे भी ज्यादा टाइम लगे हमें दोबारा बिजली को हासिल करने में। तो हम इमेजिन करें कि बिजली के बगैर हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए हमने मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेटरीज स्पेस में लॉन्च की हैं जो मुसलसल सूरज को देखती हैं, सूरज को एक्सप्लोर करती है, उससे डेटा लेती हैं, उनको एनालाइज करती हैं और फिर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं कि अगली CME कब जनरेट होगी, जमीन की तरफ कब आएगी। रिसेंटली 2012 में एक बहुत बड़ी CME सूरज से निकली और जमीन से तकरीबन 8 दिन के फासले से गुजर गई, यानी 8 दिन पहले जमीन वहां पर मौजूद थी जहां से वो CME गुजरी। तो अगर वो जमीन से टकराती तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। हमने मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेटरी स्पेस में भेजी हुई हैं जिसमें से एक STO है जो कि हमें बहुत अच्छे
हाई डेफिनेशन सूरज की वीडियोस और इमेजेस भेजती है, जिससे हमें सूरज की एक्टिविटी का पता चलता है। हमें यह अंदाजा होता है कि सोलर एक्टिविटी कैसे हो रही है, क्योंकि सोलर एक्टिविटी 11 साल के बाद अपने आप को रिपीट करती है, इसका साइकिल है, और उससे हमें यह अंदाजा होता है कि सूरज कब CME जनरेट करने वाला है। लेकिन इस प्रिडिक्शन से हमें फायदा क्या होगा? क्या हम अपनी सैटेलाइट्स को बचा लेंगे? क्या हम अपने पावर सिस्टम को बचा लेंगे? तो एक तरीका सिंपल यह है कि हम अपने पावर सिस्टम को CME के आने से पहले बंद कर देंगे, जमीन पर इंटेंशनल ब्लैकआउट कर देंगे, ताकि जमीन चार्ज हो, और फिर जब वो चार्ज खत्म हो जाए तो हम अपने सिस्टम्स को दोबारा सर्विस में ले लें। इसी तरीके से स्पेस में भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर एक CME आकर सैटेलाइट से टकराती है तो वहां पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो, जिस पर हम बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। और इस वक्त ये बहुत ही हाईली फंडेड एरिया है, जिसमें हुकूमतें बहुत ज्यादा फंड कर रही हैं, क्योंकि मकनातीसी तूफान जमीन के खात्मे का सबब भी बन सकते हैं। तो याद रखिए कि ये जादूगरों का कमाल नहीं था, बल्कि इसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है, और साइंस ही हमें वो वजह बताती है उन चीजों के बारे में जिनको समझने में हमें माजी में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती थी। अगर आपको नींद नहीं आई और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।